خانوال میں سردیاں شروع ہوتے ہی جہاں ایک طرف گیس کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، وہیں دوسری جانب مافیا نے لکڑی کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ خانوال کے شہری دوہری اذیت میں مبتلا۔ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی محکمہ سوئی گیس نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایسے میں ٹمبر مافیا کیوں پیچھے رہتا، اس نے بھی جلانے والی لکڑی کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردیوں کے آغاز میں ہی لکڑی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ گیس کی تو صورتحال یہ ہے کہ جب کھانا بنانے کا ٹائم آتا ہے تو گھر میں گیس نہیں ہوتی، صبح ہو یا دوپہر ہو یا شام ہو، گیس کی تو اتنی قلت ہے، گیس کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ پریشان حال شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں۔ لکڑیاں جلا کر پرانے زمانے کی یاد تازہ کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ لکڑی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور لکڑی کی قیمتیں زیادہ ہیں، جی غریب آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، لہٰذا گیس صحیح کریں۔ شہریوں کے مطابق ایل پی جی کے بعد اب لکڑی بھی ان کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں کھانا تیار کرنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ لکڑیوں کے استعمال نے زمانہ قدیم کی یاد تازہ کر دی ہے، اور وہ بھی مہنگائی کے ساتھ۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ردیف مغل، روہی ٹی وی، خانوال۔ لیا کے نواحی چوک 151 میں محبوب مانر میں 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ چکا ہے، جس کے باعث نہر کا پانی فصلات اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ نہری پانی داخل ہونے سے فصلوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ لیا کی محبوب مینر میں 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ نہری پانی چک 151 کے گھروں اور فصلوں میں داخل ہو گیا۔ ایک گھر کا کمرہ پانی داخل ہونے کے باعث گر گیا، جبکہ پیٹر بور بھی تباہ ہو گیا۔ محکمہ نہر عملہ کی مبینہ غفلت کے خلاف علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا۔ سارا مٹی چوائیے ٹھیکیداراں کو پیسے گدے نے، پیسے گن کے اپنے مفاد کی خاطر کل 3 بجے تو نہر لڑتی پئی ہے۔ اساں سارے احتجاج کریں دے پے ہیں، اندی منت کریں دے کھڑے ہیں، عملہ پورا اندا آدھا کھڑے، یہ وقت بھی آون کو تیار کو نہیں، فون سنن کو اٹینڈ نہیں کریں دا۔ نہر ٹرٹن دا نقصان جڑا ہے یہ ٹھیکیدار کولو پیسے گدے نے، نہر دے وچوں مٹی چوائی نے 5-5 فٹ، یہ ٹھیکیدار کو پیسے گدے نے۔ اطلاع دینے کے کئی گھنٹے بعد محکمہ نہر کے عملہ نے شگاف کو پور کیا۔ ایکشن محکمہ نہر اسد شفیق موقع پر پہنچے تو متاثرین نے ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کاشتکاروں نے الزام لگایا کہ محکمہ نہر کے عملہ کی ملی بھگت اور بھاری رشوت کے عوض نہر سے مٹی اٹھائی گئی۔ ایکشن نہر اسد شفیق کا کہنا تھا غفلت کے مرتکب 3 بیلداروں کو معطل کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ڈی سی صاحب کو بھی بتایا، ان تینوں کو سسپینڈ کریں گے، ان کی پے سٹاپ کریں گے اور ان پہ شوکاز ایشو کریں گے۔ یہ ابھی میں نے دفتر جا کے پہلے یہی کام کرنا ہے۔ متاثرہ کاشتکاروں نے مطالبہ کیا کہ نہر سے مٹی اٹھانے کے واقعے کی تحقیقات کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ چہری چوک ملتان میں ٹریفک مسائل جوں کے توں ہیں، وہ قلعہ کے لیے نئی پارکنگ سے بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ گاڑیاں کھڑی ہونے سے ٹریفک جام معمول بن چکا ہے۔ کچہری چوک سے گزرنے والے شہریوں کو آخر کب ملے گی سفری آسانی کی خوشخبری؟ اطراف میں سڑک پر کھڑی گاڑیوں نے مسافروں کی مشکلات بڑھا دیں۔ اسکول، کالجز اور دفاتر جانے والے شہریوں کا کچہری چوک سے گزرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ پارکنگ سے تنگ شہری انتظامیہ سے شکوہ کناں۔ یہ روڈ جو ہے نا، یہاں پہ بہت مشکلات ہیں۔ یہاں پہ جس کا جو دل کرتا ہے جہاں پہ گاڑی مرضی سے کھڑا دیتا ہے، اس کے لیے ٹریفک جو ہے نا بڑی جام رہتی ہے۔ یہ اگر انڈر پاس یہ فلائی اوور نہ ہوتا تو یہاں پہ تو گزرنا مشکل تھا بہت زیادہ۔ ٹریفک انچارج کا کہنا تھا کہ کچہری چوک پر روزانہ کی بنیاد پر وارڈنز کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن وکلاء اور سائلین کی گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے ٹریفک کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ تعداد وکلاء کی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے گاڑیاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ ان گاڑیوں کے پراپر پارکنگ کے لیے یہاں پہ ساتھ ہی بار کے اندر ہی جو کچہری کا آتا ہے اس میں پارکنگ پلازا بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کچہری کے کچھ پولیس لائن کی جگہ ہے، وہاں پہ بھی کوئی پارکنگ کی جگہ دی جا رہی ہے۔ ٹریفک انچارج کا مزید کہنا تھا کہ کچہری توسیع منصوبے میں وسیع پارکنگ کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا تب تک مشکلات رہیں گی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ ریسکیو 1122 کو فیک کالز کرنے والوں کی اب خیر نہیں۔ ہیلپ لائن پر جعلی کالز کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے۔ غیر متعلقہ کالز پر نہ صرف نمبر ہوگا بلاک بلکہ 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ بھی بھگتنا پڑے گا۔
खबरदार, होशियार, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को तंग मत करें वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। फेक कॉल्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। रेस्क्यू आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 18,000 गैर मुतलका कॉल्स का सामना करना पड़ा, जबकि गुज़िश्ता माह में 60,000 से ज्यादा जाली कॉल्स मसूल हुई। हमारे पास जो डेली के इमरजेंसी की है वो रेशो 300 है, जबकि आप देखें इस एतबार से 2100 कॉल्स बनती हैं पर एक हफ्ते की, जबकि हमारे पास जो सिर्फ इररेलेवेंट कॉल्स की तादाद है वो 18,000 के करीब है और एक महीने में ये 60,000 तक पहुंच चुकी है। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक जाली कॉल्स की वजह से इमरजेंसी पर पहुंचने में ताखीर का सामना करना पड़ता है, जिससे कीमती जानों के ज़िया का अंदेशा होता है। फेक कॉल्स करने वालों को अब सजा दी जाएगी। जब हमारे रिसोर्सेज एक गलत जगह पर जा रहे होते हैं, उसी टाइम में एक सही और रेलिवेंट कॉल जो होती है उस पर भेजने में हमें ताखीर हो जाती है, जिसकी वजह से जो हकदार है वो जख्मी हालत में रोड पर पड़ा रहता है। तर्जमान के मुताबिक जाली कॉल्स के बायस न सिर्फ रेस्क्यू रिसोर्सेज मसरूफ हो जाते हैं बल्कि वक्त का ज़िया भी होता है। इस हवाले से शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक हेल्पलाइन पर जाली कॉल्स करने वालों के नंबर भी ब्लॉक किए जाएंगे। कैमरामैन अजीम सागर के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान आमद वकला से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया है। PTI और PTM में कोई फ़र्क नहीं है। पनामा लीक्स व पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात कराई जाए। मुल्क में अल्लाह की हाकमियत ज़रूरी है। अदल के लिए और आज़ाद अदलिया कायम होने के लिए एक ताकतवर बार ज़रूरी है। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार के वकला से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने का नारा लगाया था, मगर किसी वादे को पूरा नहीं किया गया। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान एहतसाब का नारा लगाकर इक़्तिदार में आए, मगर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का एहतसाब नहीं किया। इमरान खान कहते थे मेरे साथ 200 माशी माहिरीन है, जब मैं आऊंगा डॉलरों की बारिश होगी। हम भी इंतजार में थे, पता चला वो माशी माहिर जनाब असद उमर साहब सुकरात की सूरत में है। 4 महीने के बाद उसको भी फारिग किया। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि अदल के लिए आजाद अदलिया जरूरी है। पाकिस्तान पर 47,000 अरब रुपए का कर्जा है, हालांकि हुकूमत कहती थी कि डॉलरों की बारिश होगी। वजारत खजाना ने पाकिस्तानी रुपए का कागज का टुकड़ा बनाकर रख दिया है। 3 साल हुकूमती कारकर्दगी से 30 साल पीछे चले गए हैं। 47,000 अरब इस वक्त आप पर कर्जा है। 47.4 ट्रिलियन आपके ऊपर कर्जा है और हम वो बदनसीब कौम बन गई है पाकिस्तानी कि सालाना बजट में 33,000 अरब यानी 3.3 ट्रिलियन आप लोग सूद में अदा करते हैं। इस मौके पर अमीर पंजाब जमात इस्लामी राव मोहम्मद जफर, अमीर मुल्तान डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, मेंबर पंजाब बार मिर्जा अजीज अकबर बेग, सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी, जनरल सेक्रेटरी उसामा बहादुर, एडवोकेट अतर अजीज, हबीबुल्लाह शाकिर, सैयद अतर शाह बुखारी, रफी रजा खादल समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। खबर दें आपको, डेरा गाजी खान के मुमकिनों के लिए अच्छी खबर है। अरसे दराज से बंद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का कहना है कि मुमकिन तौर पर 23 नवंबर को डेरा गाजी खान से पहली परवाज़ कराची के लिए उड़ान भरेगी। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, गुज़श्ता 1.5 साल से बंद एयरपोर्ट से रवा माह फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का कहना है कि डेरा गाजी खान से फ्लाइट ऑपरेशन 30 नवंबर को बहाल होने का इम्कान है। डेरा गाजी खान एयरपोर्ट से पहली परवाज़ कराची के लिए उड़ान भरेगी। अभी हमारा जो PIA का ऑफिस है वो ओपन हो गया है। अभी हम टिकट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी जो टेंटेटिव डेट है वो है 23 इसी मंथ की टेंटेटिव है। जहाज पहला जो है वो आपको लेकर जाएंगे। पहले हमारी पहली फ्लाइट इंशाल्लाह कराची तक है। ज़रताज गुल का कहना था कि डेरा गाजी खान एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के हवाले से भी मसला है। यहाँ के हजारों रिहायशी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम है, इसलिए पैसेंजर लोड का कोई मसला नहीं है। डेरा गाजी खान के लोग सऊदी अरब और इस तरह के ममालिक में रहते हैं तो हमें तो बहुत मुश्किल आती है। हमारा तो जहाज ऐसे भरता है जैसे बस हो। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने यकीन जाहिर किया है कि डेरा गाजी खान एयरपोर्ट से जहाज मुसाफिरों से ऐसे भर जाएगा जैसे बस भरती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेरा गाजी खान ने भी इस हवाले से कोशिशें की है। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली के वाइस चेयरमैन सईदुल्लाह खान की ज़ेर सदारत बजट इजलास हुआ। 31 करोड़ रुपए का बजट पेश, जिससे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया।
चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी अब्दुल करीम साजिद का कहना था कि 8 माह के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है, जिसमें 4 करोड़ रुपए गैर तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं। आज हमने तकरीबन 31 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसमें 4 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए रखे गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर बजट को पास किया है। वाइस चेयरमैन सईदुल्लाह खान का कहना था कि 4 करोड़ पैसे मशीनरी की मुरम्मत, गटरों की ढक्कन और सफाई, जबकि 27 करोड़ रुपए मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों के लिए रखे गए हैं। 1.5 माह के अरसा में कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। 4 करोड़ रुपए की जो रकम हमने रखी है, इसमें मशीनरी की मेंटेनेंस और जो गटरों के ढक्कन हैं, महदूद हमारे वसाइल थे, उसके मुताबिक हमने बजट पेश किया। वाइस चेयरमैन का मजीद कहना था कि मियां वाली शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर करने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हसनैन जहानी गर्देसी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए भरपूर मुहिम जारी है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी गंदम की बेहतर पैदावार के लिए मुतहर्रिक, कहते हैं गंदम हमारी खुराक का 70% से जायद हिस्सा है। गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए भरपूर मुहिम जारी है। गुज़श्ता साल भी 1.5 मन फी एकड़ पैदावार ज्यादा हासिल हुई। रवां साल ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए सर्टिफाइड बीज दस्तयाब है। यूरिया खाद की कीमतों में भी किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। पिछले साल हमने कोशिश करके 1.5 मन फी एकड़ औसत पैदावार में इजाफा किया था, और इस साल हमारी कोशिश है कि 2 से 3 मन फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जाए। इसके लिए हमने वाफिर मिकदार में सर्टिफाइड सीड मुहैया किया है। सैयद हुसैन जहानिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 12 अरब की सब्सिडी वफाकी और सूबे हुकूमत दे रही है। दीगर ममालिक की निस्बत हमारे काश्तकार को 8,000 रुपए सस्ती यूरिया मिल रही है। हुकूमत ने किसी किस्म के ज़राई इम्पोर्ट पर टैक्स न लेने का फैसला किया है। अगर बैनुल अक़वामी तौर पे दूसरे मुल्कों के काश्तकारों से अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तानी काश्तकार को इस वक्त 8,000 रुपए की तकरीबन यूरिया खाद में स्टेट अवे इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले में कम कीमत पे मुहैया हो रहा है। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि इस बार अगर खाद की कीमत ज्यादा है तो फसल की कीमत भी ज्यादा मिलेगी। रवां साल यूनिवर्सिटियों के तुलबा और तालबात के जरिए गंदम की काश के हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। जिला मुल्तान में खसरा और पोलियो से बचाव की 12 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने 24 घंटा घर में इंसाफ दादे खसरा मुहिम का इफ्तिताह किया है। हुकूमत पंजाब खसरा और पोलियो के खात्मे के लिए सरगर्म। सूबा भर में खसरा और पोलियो से बचाव की 12 रोजा मुहिम का आगाज। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में बच्चों को खसरे के इंजेक्शन और पोलियो के कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का इस मौका पर कहना था कि ये मुहिम 15 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 9 माह से 15 साल के बच्चों को खसरा के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जबकि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1267 टीमें 20 लाख बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के साथ तो खसरे के इंजेक्शन भी लगाएंगी। 20 लाख बच्चों को हमने ये इंजेक्शन लगाने हैं और साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर 1500 से ज़ायद टीमों को तश्कील दिया गया है जो इस मुहिम को सरअंजाम देंगी। मेरी आप लोगों के तवस्सुत से तमाम वालिदैन को, असातिज़ा को गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ये कतरे पिलाएं, इंजेक्शन लगवाएं। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने इस मौके पर अपील की कि वालिदैन और सिविल सोसाइटी इस मुहिम के दौरान अपने बच्चों को खसरे के इंजेक्शन जरूर लगवाएं। बल्कि पूरी दुनिया में मीजल, मम्प्स और रुबेला के लिए जो कैंपेन शुरू की गई है तो उसका आज यहाँ से आगाज हुआ है। 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और 9 साल के बच्चों तक जो उम्र के बच्चे हैं उनको हम रुबेला की वैक्सीनेशन करेंगे। बाद सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की क़यादत में इंसदाद खसरा मुहिम बारे आगाही रैली भी निकाली गई। कैमरामैन रौनक बिलाल के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल के लिए 450 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है।
पंजाब में सरकारी इमारतों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल मुल्तान में 450 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि सोलर प्रोजेक्ट से चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स को बिजली के बिल्स में सालाना 2 करोड़ रुपए की बचत होगी। डॉक्टर अख्तर मलिक ने बताया कि मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, क्योंकि मेरा बाय प्रोफेशन इनिशियली आई वाज ए डॉक्टर, तो बाद में तो पॉलिटिकल उसमें फील्ड में चले गए, तो मेरा फोकस भी यही रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन के जो इदारे हैं हम उनको फोकस करें। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 36 के 36 इंशाल्लाह ये भी उस पर सोलर पर मुंतकिल होंगे। सोलर प्रोजेक्ट बाय डीन चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ चिश्ती का कहना था कि मंसूबे के आगाज से चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स को करोड़ों रुपए की बचत होगी, जिस पर वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ये 450 kV का प्लांट है जो कि इस वक्त काम करना शुरू कर दिया है उसने, और एक अंदाजे के मुताबिक ये 25 to 30% जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उनकी रिडक्शन हो जाएगी, और पर एनम हमारा कोई 17.6 मिलियन की सेविंग हो जाएगी। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने इस मौके पर महकमा ताल्लुकात आमा और मुल्तान प्रेस क्लब की बिल्डिंग को भी सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का ऐलान किया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड की हफ्ता सफाई मुहिम का अख्तिताम हो चुका है। हफ्ता सफाई में कंटोनमेंट बोर्ड के 10 हल्कों को न सिर्फ साफ किया गया बल्कि शहरियों को सफाई के हवाले से आगाही भी फराहम की गई। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड की हफ्ता सफाई मुहिम का इख्तिताम। 7 रोज़ा सफाई मुहिम में कंटोनमेंट बोर्ड के गली मोहल्लों और अहम मरकजी चौराहों की इमरजेंसी बुनियादों पर सफाई की गई और मुल्तान कैंट के पहले से खूबसूरत इलाके को मजीद साफ किया गया। इस मुहिम में स्कूल के बच्चों और कैंट के बहुत से बासी शरीक हुए, उनको सफाई की अहमियत के बारे में आगाह किया गया, उनको इल्तमास की गई कि वो हमारे साथ शरीक हों कैंट को साफ रखने में और अपना किरदार अच्छे से अदा करें। हफ्ता सफाई मुहिम के दौरान कंटोनमेंट बोर्ड के 10 हल्कों की सफाई की गई। अमले ने इलाके के मुंतखब मेंबरान को साथ मिलाकर न सिर्फ सफाई की बल्कि लोगों को इलाके की सफाई बरकरार रखने के लिए आगाही भी फराहम की गई। स्कूलों के बच्चों को भी इस मुहिम में शामिल रखा गया। हमने अभी इस तरह से किया है कि कैंट को अच्छी तरह से एक बार पूरी ताकत लगा के साफ कर दिया है। आइंदा अवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ तामुन करें। कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान ने सफाई मुहिम के दौरान अवाम को आगाही देने के साथ साथ घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने की नई पॉलिसी को भी मुतारिफ करवाया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के 124वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात अख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 124वें सालाना उर्स के आखिरी रोज भी लाखों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। दरबार फरीद में सज्जादा नशीन ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरैजा की ज़ेर सदारत महफिल समा मुनक्कद हुई, जिसमें मारूफ कवाल नज़ीर एजाज फरीदी और हमनवा ने समा बांध दिया। महफिल समा में सज्जादा नशीन पाक पदर शरीफ हजरत दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी, वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरैजा, ख्वाजा आमिर फरीद कुरैजा, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा, वज़ीर औकाफ सैयदुल हसन शाह, रहनुमा पीपल्स पार्टी और MP महदूम सैयद उस्मान महमूद, ख्वाजा रावल मोइन कुरैजा समेत दीगर ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। आमीन। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरैजा कहते हैं कि रवां साल उसकी तकरीबात इंतजाम अहसन तरीके से किया गया। प्रोग्राम एक है और उनकी जो है एहतराम इंसानियत का जो काज है उनका वो एक है। हजरत वहाँ से तशरीफ लेके आए हैं तो इसी मैसेज को आम करने के लिए आए हैं कि एक दूसरे का एहतराम करो और पाकिस्तान के मुआशरे को पुरअमन बनाओ, खुदा के लिए फरोई इख्तिलाफात को छोड़ो और इकट्ठे हो जाओ। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरैजा, सज्जादा नशीन पाक पतन शरीफ हजरत दीवान अहमद मसूद चिश्ती फरूकी और वलियाह दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरैजा ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। मुल्तान इंतजामिया का इस इक़दाम में सुएज़ विलेज के बच्चों के लिए किया तफरीही दौरे का अहतमाम। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान भी हमरा थे। तफरीही दौरे पर बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई दिए।
ने लिए खिलौने तो कोई ऊंट की सवारी से और कोई कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज होता रहा। इंतजामिया की जानिब से SOS विलेज में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए तफरीही दौरा का एहतमाम किया गया। तफरीही दौरे के दौरान बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई दिए। बहुत ही मजा आया, हमने इतने झूले लिए, बहुत ही एंजॉय किया, डोली ली, हमने ड्रैगन लिया, कार्स ली, बहुत ही मजा आया। थैंक यू फॉर DP कमिश्नर। DC आमिर करीम खान का कहना था कि कोरोना के बायस तफरीही सरगर्मियां 2 साल मुअत्तल रहीं। अब तफरीही दौरे पर बच्चों की खुशी में शरीक होकर अच्छा लगा, जबकि बच्चे भी डिप्टी कमिश्नर को अपने दरमियान पाकर खुश दिखाई दिए। 192 के करीब बच्चे हैं, प्लस उनकी जो मदर्स हैं, उनके फादर्स हैं, जो स्टाफ है उनका, वो सारे आए हैं। और मैंने सबको बातचीत भी की है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को, तो उनके चेहरों पे जो खुशी है तो वो देखने से ताल्लुक रखती है। बच्चों की खुशी के पेश नजर जिले इंतजामिया की जानिब से आइंदा भी ऐसी तफरीही दौरे करने का ऐलान किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में कानूनी जंग लड़ने वालों ने क्रिकेट ग्राउंड में मैदान लगा लिया। डिस्ट्रिक्ट बार के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स काला का मैदान सजाया गया, जहां एक दूसरे से कानूनी निकात पर बहस करने वालों के माबैन बैट और गेंद के साथ लड़ाई लड़ी गई। अदालतों में कानूनी निकात पर लड़ाई करने वालों ने असली मैदान सजा लिया। वुकला ने कानून की मोटी मोटी किताबों से निकलकर खूब चौके छक्के लगाए और विकेटें भी उड़ाई। ओवर का खेल जारी और ये उठा हुआ शॉट 4 रन। अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रहीमिया खां में सज्जे स्पोर्ट्स काला में वुकला की मुख्तलिफ टीमों ने खेल के खूब जोर दिखाए। कभी रन्स के लिए दौड़ तो कभी चौका और छक्का लगाने की कोशिश की, जबकि मुखालिफ टीम विकेटें उड़ाने की लगन में रही। वुकला है पूरा साल परेशान रहते, अपने कामों में मशगूल रहते हैं। आज का दिन इसलिए हमें मुयसर होता है कि खेल कूद जो जिस्म और ज़हनी इंसान को खुशी पहुँचाता है, जिस्मानी इंसान की नशो नुमा होती है। आज हम डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से ख्वाजा गुलाम फरीद के नाम से क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, जिसमें यंग वुकला जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं और तमाशाई महजूज हो रहे हैं। कचहरी के बरामदों से निकलकर खेल के मैदान में आने वाले वुकला क्रिकेट मैच से खूब लुत्फानंदोज हुए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान की तरफ से ये स्पोर्ट्स गाला क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि पूरा साल हम मसरूफ रहते हैं, साल में एक दिन ऐसा आता है जहां हम खुशी महसूस करते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं। जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए खेलों को बहुत जरूरी समझा जाता है। रहीमिया खान के वुकला ने भी स्पोर्ट्स गाला से अपनी तवानाइयों को फिर से बहाल किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान।